learn Punjabi, maybe a bit of Hindi as well. Amen. I'm Pastor Vicky Simon from Whole Nation Church, but it does not matter who I am. What matters is who I serve. Hallelujah. Amen. And I serve Lord Jesus Christ along with all the servants of God here tonight. Amen. Can we just put our hands together for Lord Jesus? Amen. Praise God. We will not take a lot of time. We'll go straight into the Word of God. मैंने इसलिए ये ज़बूर एंड पर request किया था because I knew what I was going to share and the Lord has laid it on my heart to talk about this particular ज़बूर. ये जो ज़बूर 121 121 है. Is that right? आरिफ भाई 121 ज़बूर है. मदद लई मैं किसनू पुकारा. Hallelujah. It starts with a question. It opens with a question. Where does my help come from? मेरी मदद कहाँ से आती है? मदद लई मैं किसनू पुकारा. Hallelujah. This is actually a prophetic ज़बूर. एक ये नबूवती ज़बूर है जो पुराने अहदनामे में दाऊद को मिला था. And he is asking the question in the Old Testament कि मदद लई मैं किसनू पुकारा. And I believe that because of the scriptures, और मैं ये मान रखता हूँ कि मुझे यकीन है कि उसका ये जो सवाल था वो पूरे तरीके से आंसर नहीं हुआ था. उसकी पूरा आंसर जो है उसके सवाल का वो नए अहदनामे में आता है. Hallelujah. And we'll see that from the scriptures. I have my brother who's going to be helping me read some scriptures as well. So let's just look at Psalm 121. Now, how many of you agree we need help in life? Amen? I need help. I need help, firstly, to raise my 2 children. Come on, how many of you agree we need help to raise our children in the ways of the Lord? Amen? Amen? We've been traveling today, and we need help. We need help to be patient. My son was just playing with the sun visor, and he broke it. And Holy Spirit, I need you. We need help to raise our children in the ways of the Lord. Hallelujah. We need help to be patient. Amen. We need help to be self-controlled. हमें मदद चाहिए gentle नरमी के लिए, to have that patience. We need help in so many different areas, and that's where psalmist जो डेविड है, किंग डेविड है, वो ये सवाल कर रहा है, मैं मदद लई किसनू पुकारा. And let's just read word to word as this ज़बूर is written. ज़बूर 121. मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मत खुदावन से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया. वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँगेगा नहीं. देख, इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँगेगा ना सोएगा. खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा सायबान है. ना आफताब दिन को तुझे जर पहुँचाएगा, ना महताब रात को. खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा. खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा. हालेलुया. हालेलुया. So David is asking this question, मदद लई मैं किसनू पुकारा. Obviously इस साम में जो जवाब उसको मिलता है वो तो कह रहा है यहोवा खुद मेरी मदद ले आता है. ठीक है, वो खुद पर्सनली मेरी मदद के लिए आता है. लेकिन वो यहोवा जो खुद मदद के लिए आता है वो किस रूप में मदद के लिए आता है. Hallelujah. We need to find the answer, and the answer is given to us in the New Testament. But before we go into that answer, let us just establish all the areas that we need help in. जैसे कि मैंने कहा, एक आम सी बात है लेकिन बहुत जरूरी बात है. हमें अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग के लिए उस मदद की जरूरत है. हालेलुया. बहुत से लोग हैं, हमें फाइनेंसेस में मदद की जरूरत है. Amen. Can I see your hand if you need a breakthrough in finances? अगर आपको फाइनेंसेस में खुदावन की मदद की जरूरत है. Hallelujah. Can I see your hand if you need healing in your life? अगर आपको अपनी सेहत के लिए खुदावन की जरूरत है. Can I see your hand if you need help in relationships? Relationships में हमें जरूरत है. रिश्तेदारी में, रिश्ते नातों में, उन चीजों में हमें खुदावन की उस मदद की जरूरत है. Hallelujah. Can I see your hand if you believe we need help to overcome the power of temptation and sin? Yes. Hallelujah. हमें उस गुनाह पर काबू पाने के लिए मदद की जरूरत है. कोई ऐसे कह नहीं सकता कि भाई मेरी मदद नहीं चाहिए.
कोई कह सकता है कि भाई असि मेरी मदद नहीं चाहिए, अपनी मदद तुसी अपने कोल रखो. Nobody can truly say I don't need help. We need help. Those who can't drive, they need help of a driver. We need help. Those who can't cook, they need good wives that can cook for them. Hallelujah. Hallelujah. Those who are engaged couples, they need to train their wives to cook or have enough money to order takeaways. Choice is yours. We need help. हमें मदद की जरूरत है ये सब कुछ करने के लिए. हालेलुया. क्या हम खुदावंद की मदद के बगैर यहाँ पे रिवाइवल की बात कर सकते हैं? There's something that says on our heart of worship banner here, restoring lives, igniting passion and bringing revival to the land. ये सब कुछ करने के लिए हमें उस मददगार की जरूरत है जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर किया है. हालेलुया. लेकिन वो मददगार कौन है? यीशु मसीह नासरी है. लेकिन किस रूप में है? We will see in John chapter 14 verses 14 to 17. यूहन्ना 14 बाब उसकी 15th वर्स. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा. हालेलुया. वो क्या बख्शेगा तुम्हें? दूसरा मददगार बख्शेगा. अखियां चुकनावा मैं वल पहाड़ा मदद ले मैं किसनु पुकारा. मेरी मदद ने यहोवा आप ही आया. किस तरह आया? जो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा पूरा किया. पुराने अहदनामे में हम पाक रूह के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं. देखते हैं कि पाक रूह लोगों पर आता है. जैसे सैमसन है, उसके ऊपर पाक रूह आता था. मूसा के ऊपर पाक रूह आता था. दाऊद के ऊपर पाक रूह आता था, लेकिन फिर चला जाता था. हमेशा उनके ऊपर ठहरता नहीं था. वो ठहराव नहीं था जो हमें खुदावंद ने अहदनामे में एक वादे में दिया है. हालेलुया. एक दफा फिर पढ़ेंगे ये उसको. और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा. हालेलुया. वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा. दाऊद के पास वो तोहफा था, लेकिन क्या दाऊद के पास उस तरह था जैसे खुदावंद ने हमें वो प्रॉमिस दिया है? इनफैक्ट कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो नबियों ने इंतजार किया, वो देखना चाहते थे वो दिन जब वो पाक रूह का तोहफा हम सब पर नाज़िल होगा. लेकिन मसला एक बहुत बड़ा मसला है. हम उस तोहफे की ठीक तरीके से निशानदेही नहीं कर सकते. हम उस तोहफे को ठीक तरीके से कबूल नहीं करते. We don't truly understand the power of Trinity, God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि शायद जो पाक रूह है वो तीसरे नंबर पर है और खुदावंद यीशु मसीह दूसरे नंबर पे है और सबसे ऊपर है हमारा खुदा बाप. लेकिन ऐसे नहीं है. तस्लीस में ऐसे नहीं है. वो तीनों एक ही रुतबे पे हैं. हालेलुया. क्योंकि अगर वो तीनों एक रुतबे पर ना हो तो हम तीन माबूदों की पूजा कर रहे हैं. क्योंकि वो तीनों एक ही रुतबे पे हैं, हमें इस चीज की एहतियात करनी है कि हम पाक रूह को इस तरह ना समझें कि जैसे वो कोई तीसरे तबके पे है, या उसके पास वो पावर नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, या उसकी वो हैसियत नहीं जो हमारे खुदा बाप की हैसियत है. We need to understand that they are all equal. Amen. Three in one. We don't worship three gods. We worship God who revealed himself in three different forms to us. They coexist at the same time. वो एक ही वक्त में अपना वजूद रखते हैं. हालेलुया. हर जगह पे खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा. You know the English word that is used there in English Bible sometimes is helper. In some versions the word used there is advocate. The Greek word for advocate is parakletos. And the word parakletos just simply translates as somebody who comes alongside. आज मेरे साथ मेरे भाई मून यहाँ पे मेरे साथ तर्जमा कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तर्जमा नहीं कर रहे. He's come alongside to help me.
He is there. Wherever I go, He's walking with me. He's coming alongside with me. Hallelujah. When I go here, He's going this way. When I tell Him to read the scriptures, He'll read the scriptures. If I move forward, He's going to move forward. He's going wherever I'm going. And we wish some of our wives were like that. Praise the Lord. We wish, but they don't have to be. Amen. The only wish we need to have is that we need that madadgar. Hallelujah. We need to understand वो जो बात दाऊद ने सवाल शुरू किया ज़बूर 121 में, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस सवाल का जवाब मुकम्मल किया, उस नबूवत को मुकम्मल किया। उसने कहा मैं जाता हूं अपने बाप के पास, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक क्या, हालेलुया, दूसरा क्या, मददगार, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेज रहा हूं। वो मददगार कौन है? पाक रूह है। वो मददगार कौन है? खुदा का पाक रूह है। खुदावंद यीशु मसीह को तो हम जानते हैं, उसको पहचानते हैं, लेकिन कई दफा हम पूरे तरीके से उस मददगार को अपनी जिंदगियों में इख्तियार नहीं देते। You know, one of the reasons we Pentecostals believe in the infilling of the Holy Spirit, because we know we are incomplete without it. Hallelujah. उस पाक रूह के बगैर हम incomplete हैं. We cannot do the things that we need to do. Let's look at another scripture. हम खुदावंद यीशु मसीह की एग्जांपल देखते हैं। लूका की इंजील उसका 4था बाब, उसकी पहली वर्ष और उसकी 14वीं वर्ष। पहली वर्ष, फिर यीशु रूह कुदूस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। 14th वर्ष, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। भाई ये बाइबल आपको किसने दी है? बहुत अच्छी बात है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बाइबल मैंने नहीं लिखी, ये खुदावंद का कलाम है। हालेलुया। ये कॉपी मैंने इनको नहीं दी अपना मैसेज बनाने के लिए, ठीक है? मैंने नहीं ने कहा, मुझे नहीं पता था आपने कहां से बाइबल उठाई है, किसकी चोरी की है, लेकिन अच्छी बात है, सिस्टर तमीना ने दी है। आपको किसने दी? आपने पाकिस्तान से खरीदी होगी। इसमें मेरा कोई प्लान नहीं है। These are the words of the Lord. अगर खुदावंद यीशु मसीह ने पहली वर्ष में क्या हुआ है, गौर से सुनिएगा। पहली वर्ष में क्या हुआ है? लूका की 4था बाब उसकी पहली वर्ष एक दफा फिर आराम से पढ़िए। फिर यीशु रूह कुदूस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। हालेलुया। Jesus is setting an example for each and every one of us. He is full of the Holy Spirit, and Holy Spirit leads him into the wilderness for 40 days. रूह की हिदायत से वो बियाबान में 40 दिन तक फास्टिंग के लिए चला गया। किसकी हिदायत से? रूह की हिदायत से। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो खुद रूह को भेजता है, वो स्टिल रूह के ताबे है और रूह की हिदायत के साथ जा रहा है बियाबान में 40 दिन के रोजे के लिए, ताकि वो शैतान के ऊपर काबू पाए। और जब वो काबू पा लेता है तो 14वीं आयत में क्या होता है? वो पाक रूह की ताकत से मामूर होकर वापस लौटता है। हालेलुया, हालेलुया। लामे से सुनेंगे एक दफा फिर 14वीं आयत। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। हालेलुया। सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। शोहरत किस किस को नहीं चाहिए आजकल? मैं नहीं कहूंगा हाथ उठाएं, लेकिन डीप डाउन बहुत से लोग मशहूर होना चाहते हैं, आरिफ भाई की तरह या सिस्टर तमीना की तरह। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि जो रियल शोहरत है, जो रियल इज्जत है, जो रियल अनॉइंटिंग है, जो रियल मसा है, जो रियल ताकत है, जो रियल कुव्वत है, वो सिर्फ एक ही जगह से आती है और उसका नाम है पाक रूह। हालेलुया। पाक रूह हमें वो शोहरत देता है जो हमें चाहिए। हमें अपने नामों की शोहरत नहीं चाहिए, हमें अपने कामों की शोहरत नहीं चाहिए, हमें अपने पैसों की शोहरत नहीं चाहिए। हमें वो शोहरत चाहिए जो पाक रूह की ताकत से हमें मिलती है। जब हम उसकी ताकत से मामूर होके खुदावंद के काम करते हैं, हमें वो शोहरत चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया, खुदावन के लिए तालियां बजाएं, हालेलुया। We need that faith. Our word will spread not because we are doing something that we want to do, but because what God wants us to do in this time. People know them because they are the anointing servants of the Lord. Because the anointing of the Lord is upon them. Hallelujah. You are here not because of Arif Bhatti's name. Many people are called Arif Bhatti. बहुत से लोगों का नाम आरिफ भट्टी है, बहुत से बुरे लोगों का भी नाम आरिफ भट्टी हो सकता है। नाम में ताकत नहीं है, उस काम में ताकत है जो खुदावंद हमसे करवाता है। हालेलुया। उस नाम, किसी के नाम में, सिस्टर तमीना के नाम में ताकत नहीं है। बहुत सी तमीनास को आप भी जानते होंगे। There are many Taminas in the world. But what is different about this Tamina? Because she operates in the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. We need to operate in that power. और वो power तभी हमें मिलेगी when we are led by the Holy Spirit. Amen. If Jesus was led by the Holy Spirit, how much more we need to be led by the Holy Spirit. कई दो सवाल पूछा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? Why was he baptized? और खुदावंद को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी मना किया। उसने कहा, खुदावंद मैं तो तेरे जूतों के तस्मे भी नहीं टाई करने के लायक, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा चाहिए। और उसको खुदावंद ने बपतिस्मा दिया भी था। पता है कब दिया था खुदावंद ने उसको बपतिस्मा? Praise the Lord. जब वो मां के पेट में था, जब मैरी गई, कसम मरियम जब गई उधर एलिजबेथ को मिलने के लिए, तो वो क्या हुआ? एलिजबेथ के अंदर जो यूहन्ना था वो उछल पड़ा, और उसमें लिखा है वो पाखरू से भर गया। And Elizabeth started to prophesy. Why? Because the child that was in her womb got filled when he got in touch with the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. लेकिन फिर भी खुदावंद ने कहा रवायती तौर पर जाने दे, इस बात को होने दे। Why? क्योंकि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था। हालेलुया। ताकि कोई ये ना कह सके भाई मैं तो पास्टर आरिफ हूं, मैंने तो बहुत से गीत लिख दिए, मुझे बपतिस्मे की जरूरत नहीं, या मेरा नाम तो पास्टर विकी है, मैं तो पास्टर हूं भाई, आप तो काफी देर से खिदमत कर रहे हैं, आई डोंट नीड टू बी बैप्टाइज्ड। इट शोज ह्यूमिलिटी, इट शोज आवर कैरेक्टर, ये हमारा किरदार दिखाता है। For those who are not baptized and belong to Jesus, you need to be baptized. You need to be baptized by the Spirit of God, most importantly than being even baptized in the water. मैं ये नहीं कह रहा कि पानी का बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, ज्यादा जरूरत प्राक रूह के बपतिस्मे की है। हालेलुया। मदद ले मैं किसनु पुकारा? Where does my help comes from? My help comes from the maker of heaven and earth. Hallelujah. And the way he sends that help to me is through the Holy Spirit that comes and lives and works through my life. Hallelujah. That's the Spirit of God we need to cry out today. Amen. In Acts chapter 1 verse 8 says, it says that you shall receive power. आपको क्या मिलेगा? कुव्वत मिलेगी। हालेलुया। How is it written in the Urdu Bible? लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हालेलुया। कौन कौन कुव्वत पाना चाहता है आज? कौन कौन कुव्वत रियली अपने दिलों से कुव्वत पाना चाहता है? अपने दोनों हाथ बुलंद करके मुझे ना दिखाएं, खुदावंद को दिखाएं कि खुदावंद मैं आज कुव्वत पाना चाहता हूं। Come on, begin to say, खुदावंद मैं आज कुव्वत पाना चाहता हूं। खुदावंद मैं आज तेरी पाक रूह की कुव्वत पाना चाहता हूं। हालेलुया। खुदावंद मुझे अपने पाक रूह से ममूर कर, मैं तेरी कुव्वत पाना चाहता हूं। लेकिन वो कुव्वत एक मकसद के साथ आती है। You shall receive power and you will be my witness in Judea, in Samaria and to the uttermost parts of the world. Hallelujah. ऐसे लिखा है, ठीक है, हम मुझे दुरुस्त कर सकते हैं क्योंकि आज आप बाइबल रीडर। तो पढ़े हमारे लिए फिर वर्स 8। लेकिन जब रूह कुदूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। Hallelujah. With that power comes purpose. With that purpose comes responsibility. Hallelujah. Yes. Somebody said, I don't know who said, but with great power comes great responsibility. Yes.
So when you have that power, उसका ये मतलब नहीं बस मैं पाकरू से पढ़ गया हूँ, अब मुझे गैर ज़बानों में बोलना आ गया, काम खत्म। गैर ज़बानें तो सिर्फ एक निशानदेही है मेरे भाइयों और बहनों। गैर ज़बानें, स्पीकिंग ऑफ द टंग्स इज जस्ट द बिगिनिंग। आप कैसे किसी को प्रूव कर सकते हैं कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका है? उसकी एक निशानदेही और सबसे अहम निशानदेही ये है कि आपको गैर ज़बानों में बोलने की ताकत मिल जाती है। हालेलुया, because that's what happened in the Bible. That is the sign. क्या जो गैर ज़बानें नहीं बोलते क्या वो saved नहीं है? Of course they are saved. They are saved. But do they have the power? I don't know. I don't know. Do they have the same power as somebody who's baptized in the Holy Spirit? I don't know. So what is important? That we take that power and we don't say that, well, I want the power, लेकिन मुझे वो गैर ज़बानें नहीं चाहिए क्योंकि वो पता नहीं वो क्या बोलते हैं, समझ तो आती नहीं है। भाई जो उसको रिजेक्ट करते हैं उन्होंने आज तक कभी गैर ज़बानों में दुआ की ही नहीं। जब एक दफा आप उस चीज का मजा चख लेते हैं तो आप कभी भी उस चीज को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग आज तक पाकिस्तान नहीं गए उनको क्या पता कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है। जो लोग जा चुके हैं वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सेम गोस फॉर इंडिया, पास्टर डाइगो। Who's been to Goa here? Goa? Well, you're from Goa, so you don't need to put your hand up. Who's been to Goa? Okay. Yeah, you're from Goa as well, technically. Alright, so only a couple of people. So if I said to you, कि भाई Goa बहुत अच्छी जगह, I've not been to Goa by the way. But if Pastor Johnny came up and he said, Goa, amazing beaches, golden sands, beautiful, you can relax, have coconuts on there, and have the cashews, and have great food, and lots of sunshine, बहुत मजा आएगा, गोवा जाएं, ठीक है? लेकिन आप कहें कि नहीं यार, गोवा से भी बड़ी अच्छी जगह हैं यार, पुर्तगाल जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, लेकिन जो गोवा का मजा पास्टर जोनी कह रहे हैं वो गोवा में ही है। तो जो गोवा नहीं गया वो तो कहेगा भाई हमें तो समझ नहीं आती गोवा, हम तो कभी गए नहीं। लेकिन जो गोवा से आया है, जो गोवा जा चुका है, he would be able to testify that Goa is a good place because he has tasted and he has seen that Goa is a good place, and he will never be able to say कि पास्टर जोनी झूठ बोल रहे हैं कि गोवा अच्छी जगह नहीं है because he has been to Goa. Amen. बात समझ आ रही है? मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? अगर आप किसी को कहें जी मैकडॉनल्ड्स का चीज बर्गर बहुत अच्छा है, सारे चीज बर्गर से सबसे अच्छा चीज बर्गर मैकडॉनल्ड्स का ही है। The best thing to do is this: go and try it. Amen? Does that make sense? Unless you're a vegetarian, go and try it. Go and try the frappers in McD's. Go and try it, and then you'll be able to know how good that is. I don't know. I'm just giving an example, okay? I'm not marketing McDonald's here, all right? The Word of God says, taste and see that the Lord is good. Amen. Hallelujah. Turn to somebody next to you and tell them, taste and see that the Holy Spirit is good. Taste and see that the Holy Spirit is good. इसका उर्दू में क्या तर्जुमा होगा? सॉरी, आजमा के और चक के देखो कि खुदावंद कितना भला खुदा है। हालेलुया। आजमा के और चक के देखो कि पाक रूह की ताकत क्या ताकत रखती है। हालेलुया। आजमा के और चक के देखो, जब एक इंसान पाक रूह से मामूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। हालेलुया। जब एक इंसान उस पाक रूह की ताकत को चख लेता है, हालेलुया, he then understands the power that comes with the Spirit of God. आजमा के देखो उस पाक रूह की ताकत को। How many of you know the Prime Minister of United Kingdom right now? कितने लोग जानते हैं? क्या क्या नाम है? बहुत से सब क्या नाम है उसका? Keir Starmer, right? Everybody knows the Prime Minister is Keir Starmer. How many of you personally know him? Anybody here?
who personally knows him, who spent time with him? How many of now, who's the king of United Kingdom? King Charles, right? We all know the name. But how many of you know him personally? Joshua, you putting your hand up? Joshua over there at the back. He knows King Charles personally. The point is this, that in order for us to know somebody, it's not enough to know their name. Hallelujah. Amen. किसी को जानने का मकसद ये नहीं है कि हमें सिर्फ उनके नाम का पता चलना चाहिए। थोड़ा सा और इसको पुश करते हैं पॉइंट को। किसी को जानने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि हमें उसके कामों का भी पता हो, सिर्फ कामों का पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है किंग चार्ल्स इज द किंग ऑफ द नेशन, ही इज किंग ऑफ द कॉमनवेल्थ वर्ल्ड, ओके, ही इज किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। वी नो दैट, वी नो द नेम एंड द पर्पस ऑफ the Prime Minister of United Kingdom, but we do not know them personally. लेकिन हम उन्हें जाती तौर पर नहीं जानते। और यही मैं बात करना चाह रहा हूं कि आपने पाकरू का सुना है, आपने पाकरू के मकसद भी सुने हैं। You know the name Holy Spirit, you know what the Holy Spirit does, but do you actually have the Spirit of God in you is the question. क्या हम अपने अंदर वो पाकरू की कुव्वत को रखते हैं या सिर्फ उसका नाम जानते हैं, या सिर्फ उसका ख्याल सुना है, या सिर्फ उसके कामों के बारे में नॉलेज रखते हैं कि पाकरू ये करता है, पाकरू वो करता है। जब पाकरू आता है तो लोग गैर ज़मानों में बोलते हैं, गैर ज़माने सुनी है मैंने, पता है ये लोग पाकरू से ममूर हैं। लेकिन आज खुदावन हम सबको वो मददगार देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें खुदावन उस पाकरू से ममूर करना चाहता है, ताकि हम जिस तरह इधर आए हैं उस तरह से वापस ना जाएं, एक नई कुव्वत का लिबास लेकर यहां से जाएं। हालेलुया, आमेन। We need to go out of this place not the way we came in, but with power. Amen. With power that comes from the Holy Spirit. Hallelujah. The power that only comes from the Holy Spirit. Amen. Well, ताकत मिल सकती है शैतान से भी, बुरी आत्माओं से भी ताकत मिल सकती है। बुदरुआं तो भी ताकत मिल जाती है। कई बुदरुआं इस तरह दी होंदियां ने, भाई तुसी जिन्ने मर्जी मर्द ले आओ, वो एक मर्द चो है वो सारे मर्द थले हो जाए। बुदरुआं च भी बड़ी ताकत होती है। But the power that we have is greater than any other power. Hallelujah. जैसा आरिफ भाई कह रहे थे, जो नाम हम जानते हैं वो उन सब नामों से ऊंचा नाम है जिसके आगे हर किस्म की जंजीर टूट जाती है। Amen. Can I say one more thing? In order to use that name properly, we need to be filled with the Holy Spirit. Amen. कुछ लड़के थे, नया नामे में एक स्टोरी है in Book of Acts, sons of Sceva they were called. स्कीवा के बेटे थे। उन्होंने देखा भाई ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये तो जाते हैं यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लोगों पे हाथ रखते हैं और बदरूहें निकल आती हैं। किस किस को इस स्टोरी का पता है? हालेलुया। बदरूहें वो निकल आती हैं लोगों से जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई फॉर्मूला अच्छा है, हम भी ये ट्राई करते हैं। They were sons of a priest actually, वे काहिन के बेटे थे। उन्होंने कहा फॉर्मूला अच्छा है, हम भी जाके जरा ट्राई तो करें, यीशु मसीह का नाम लेंगे और बदरूहें निकल आएंगी। नहीं, वैसे एग्जांपल है, डोंट माइंड, ओके। यीशु मसीह का नाम लेंगे और बदरूहें निकल आएंगी। उल्टा क्या हुआ, वो बदरूहां उन्हां दे उत्ते पै गई, उन्हां नूं चमड़ गई। वो बदरूहां कटन के सन, उल्टा वो बदरूहां तो पर गए, कुट खा के आगे बदरूहां कपड़े फाड़ दिए बदरूहों ने उनके नंगे। पास्टर एडवर्ड इज सेइंग दे वो नंगे भाग गए। और कई दफा इस तरह होता भी है। मेरे कुछ दोस्त हैं पीछे, उनके सामने एक इस तरह का हादसा हुआ था। तो कभी कभी बदरू आपके ऊपर ज्यादा जोरावर हो जाती है, हमला कर देती है। मेरे बहनों और मेरे भाई, आज इस जगह पर आने का पर्पस ये है कि हम उस नाम को ठीक तरीके से समझ सकें। Hallelujah. The purpose we are here today so we can understand. It's not a formula. It's not a formula that Arif said, yes, in the name of Jesus you can break the chains, and you go and you try to break the chains. It's not going to work.
In order for us to break those chains, we need to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. We need to have the baptism of the Holy Spirit. And the good news is this, that the Lord wants to give it to each and every one of us today. Hallelujah. हर किसी को वो पाक रूह से भरना चाहता है. जो ऑलरेडी भरे हुए हैं वो उनको और आगे लेकर जाना चाहता है. वो उस आग में उनको आगे लेकर जाना चाहता है. Because we are crying out and praying for the revival in this land. And for the revival to come in this land, the believers needs to be filled with the Holy Spirit. And that's when the revival comes. रिवाइवल तभी आता है, खुदावंद तभी उस मूव में निकलता है जब उसके फरजंद पाक रूह से मामूर होके उसकी प्रैक्टिस करते हैं. हालेलुया. Because the word of God says that the time is coming that those who worship me will worship me in spirit and in truth. हालेलुया. जो रूह में और सच्चाई में मेरी प्रैक्टिस करेंगे. रूह में और सच्चाई में. सिर्फ रूह का नॉलेज रखते हुए नहीं, या सिर्फ रूह को जानते हुए नहीं, बल्कि रूह में आके वो मेरी प्रैक्टिस करेंगे. हालेलुया. कौन कौन यहां पे रूह में प्रैक्टिस करना चाहता है आज? कौन कौन आज रूह से प्रैक्टिस और सच्चाई से प्रैक्टिस करना चाहता है? खुदा ने कहा वो वक्त आ चुका है. अगर वो वक्त 2000 पहले आ गया था तो भाई आज किस चीज का इंतजार हो रहा है? आज इंतजार किसी चीज का नहीं हो रहा. आज सिर्फ सवाल हो रहा है, भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मैं इस काबिल नहीं. ये कहीं पे कहां पे कलाम में लिखा है कि आप इस काबिल नहीं? जो खुदावन में आ चुके हैं वो सब इस काबिल हैं कि वो पाक रूह से मामूर हो जाएं. हालेलुया. अगर आप खुदावन में नहीं आए, अगर खुदावन को आपने अपने पूरे दिल से और जान से कबूल नहीं किया, तो आज आप उसको एक दफा फिर अपनी जिंदगी में इख्तियार देके उसको कबूल कर सकते हैं. हालेलुया. ताकि वो आपको पाक रूह की मामूरी से मामूर कर सके. Praise the Lord. Amen. Is that okay? In Acts chapter 2 verses 1 to 4. जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी. और वो सब रूह कुदुस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी. हालेलुया. वो रूह से भर गया और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उनको ताकत बख्शी. आप डरें मत अगर खुदावंद आपको पाक रूह का बपतिस्मा देना चाहता है. हालेलुया. We need to receive it. We don't need to reject it. We don't need to confront it. We don't need to say I don't want it. I am not ready for it. भाई अगर आप उस बपतिस्मे के लिए रेडी नहीं हैं तो आप किस चीज के लिए रेडी हैं? क्या सिर्फ खुदा के करिश्मे देखने के लिए? क्या सिर्फ खुदा के मेडिकल्स देखने के लिए? क्या सिर्फ इधर आके गीत सुनने के लिए? क्या सिर्फ इधर आके लोगों को हम ये कह सकें कि भाई मैं खुदावंद से बिलोंग करता हूं, मैं खुदावंद से बिलोंग करती हूं? Every single one of us is ready to receive the Holy Spirit if we are born again. Hallelujah. Because the fact that you are born again, the Holy Spirit has already been working in your life. Amen. And this is a promise of the Lord. In Luke chapter 11 verses 11 to 3. ये आखिरी वर्ष है. उसके बाद I'll request worship team starts to come up. Luke chapter 11 verses 11 to 3. तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदुस क्यों ना देगा? हालेलुया. आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदुस क्यों ना देगा? मेरे साथ बोले, आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदुस क्यों ना देगा? क्या हम आज उससे वो रूह कुदुस मांग सकते हैं जो हमारी विरासत है? क्या आज हम उससे वो रूह कुदुस मांग सकते हैं जो उसने हमें तोहफे में दिया है? हालेलुया. क्या हम उस मददगार को पुकार सकते हैं जिसके बारे में डेविड ने लिखा है, दाऊद ने लिखा है कि मैं
आखियां चुकनावा वल पहाड़ा मदद लई मैं किसनु पुकारा, मेरी मदद लई यहोवा आप आया। हालेलुया। और वो किस तरह आया, क्योंकि खुदावन ने कहा है आई गो टू द फादर एंड आई विल सेंड यू द एडवोकेट, आई विल सेंड यू दैट हेल्पर, मैं तुम्हें वो दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारी जिंदगी में आके तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। वी नीड टू स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द होली स्पिरिट more than ever before। जो ऑलरेडी खुदा की मामूरी को जानते हैं, जो ऑलरेडी खुदावन के रूह से मामूर हो चुके हैं, you need to look at your life and see, क्या मैं वाकया ही खुदावन की पाक रूह के ऊपर डिपेंड करता हूं? रसूलों के अमाल को पाक रूह के अमाल भी बोला जा सकता है। बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि रसूलों के अमाल को पाक रूह के अमाल भी बोला जा सकता है, क्योंकि जब आप उस बुक को रीड करते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह पाक रूह उनको गाइड कर रहा था। फिर पाक खुदा के पाक रूह ने मुझसे कहा इधर चला जा, फिर पाक खुदा के पाक रूह को अच्छा लगा कि हम ये करें, हम वो करें, हम वहां पे जाएं। हम तो वो सारी बातें करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, क्या हम वो बातें कर रहे हैं जो खुदा के पाक रूह को अच्छी लगती हैं, या हम वो बातें कर रहे हैं जो हमारे अपने मन को बहलाती हैं, हमारे अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करती हैं? Apostle Paul said, when I was a child, I spoke like a child. But when I grew up, I understood. फिर मुझे बात समझ आ गई। बहुत से मसीहियों को जरूरत है कि वो they need to grow up। Grow up कोई बुरा वर्ड नहीं है, ठीक है? जब हम अपने बच्चों को कह रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, ये फूल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, हम उनकी एनकरेजमेंट के लिए कह रहे होते हैं। तो हमें भी खुदावन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। We need to go further in the Lord. We need to grow in the Lord. And the purpose of this meeting is this, that I can grow in the Lord. Hallelujah. I'm not just here to deliver this message for you. I'm here to deliver this message to each and every one of us. Hallelujah. ये मैसेज, ये कलाम हम सब के लिए है। हालेलुया। हर एक वर्शिपर के लिए है, हर प्रीचर के लिए है, हर एक बंदी जो यहाँ पे मदद कर रहे हैं उन सब के लिए है। कोई भी इस मैसेज से महरूम नहीं। हालेलुया। Every single one of us need that helper। मदद की जरूरत है हमें इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए मदद की जरूरत है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल इस दुनिया में, we need that help that comes from the Spirit of God, because that is the Spirit of God that Jesus said that when you stand before the authorities, जब आप आला हुक्मरान के आगे खड़े होंगे and you don't know what to say, जब आपको कुछ पता नहीं कि आपको क्या कहना है, the Holy Spirit will give you the words that you need to speak. Hallelujah. We need the Holy Spirit. Everybody, we need the Holy Spirit. In this day and age, I need the Spirit of God to move like never before. Sister Tamina, Brother Joshua, Asher, we need the Spirit of God in our lives. We cannot do this work without the power of the Holy Spirit. We cannot play this without the power of the Holy Spirit. We cannot stand here and preach the Word of God without the power of the Holy Spirit. We cannot do any ministry, we cannot do any work without the power of the Holy Spirit. I need the power of the Holy Spirit. How many of you want that same power? कितने हैं यहाँ पे जो आज वो पावर लेकर यहाँ से जाना चाहते हैं? I want to ask you to stand on your feet.